Students, in this second session of unit number 4, we will be discussing qualities and functions of an entrepreneur. In the previous section, we have read about how entrepreneurs help in the growth of the world around them. To help society, how do they think and behave? So, what are the qualities of an entrepreneur that we will discuss? क्या उनकी ऐसी खासियत होती है, क्या विशेषताएं हैं entrepreneurs की? Okay, so let us discuss the qualities of entrepreneur. What is a quality? Quality is a way in which a person acts or behave. किस तरीके से वो काम करता है, कैसे वो उसका बिहेवियर है, वो उसकी क्वालिटीज़ कहलाती है. सम एग्जाम्पल्स लाइक हार्ड वर्किंग, नाइस, रूड. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. So we have a comic strip in the given figure and we will learn the qualities of entrepreneur, okay, with these comic strips. Let us see. Qualities of entrepreneur. You must believe in yourself. You should be confident and take business decision. Oh, that idea did not work, but it is okay. I keep trying new ideas. So these statements have those qualities inside them and you have to identify that. Third statement, running my business is difficult, but I am patient because I know success will come soon. I have a creative and different solution to the problem. That is very important. You should have a creative and different solution. Okay, that is why I am successful. So these are the 4 statements that has those qualities of an entrepreneur in them. In this figure, we have the story of Zafar. Let us see. Oops, I made a mistake, but it was my decision, so I take responsibility for it. I will work to make it better. होता है कई बार आपका आइडिया कुछ गलत हो जाता है, आपने वो चीज़ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपने सोची भी ना हो, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन वो आपका डिसीजन था, तो आपको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए. तो उससे आप उस काम को और सुधार सकते हैं आगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड फॉर माई बिजनेस. डिसीजन अचानक नहीं ले जाते हैं, तुरंत नहीं ले जाते हैं, पहले पूरा सोच, एक उस पर सोच की जाती है, उस पर सोच अप्लाई की जाती है कि इससे मेरे बिजनेस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है. आई एम वर्किंग सो मैनी आवर्स संडेज ऑल्सो बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द कंपनी. मैं हमेशा काम पे लगा रहता हूँ, संडेज़ को भी काम करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ क्योंकि ये मेरी कंपनी के लिए अच्छा है. समटाइम्स आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स बट आई डू नॉट गिव अप. आई स्टे पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन. कई बार मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके, सो these 4 statements are about the story of Zafar. सो इन 2 कॉमिक स्ट्रिप्स में आपने जो स्टेटमेंट्स पढ़े उसमें एंटरप्रेन्योर्स की जितनी विशेषताएं हैं वो सब मेंशन की गई हैं. ओके, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो क्वालिटीज़ दिखने लग जाएंगी, वहाँ कहाँ पे वो क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं. सो यू हैव रेड अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. Okay, let us find what the entrepreneurial qualities that we have, that you have. उनको identify करते हैं through some activities. So this is the activity number 1. My entrepreneurial qualities self assessment. तो इस एक्टिविटी में आप अपना असेसमेंट करेंगे कि आप में कौन सी entrepreneurial qualities हैं. So you have to answer it in yes or no. Okay, so qualities of entrepreneur: I believe in myself and what I can do. I am confident. You have to mark yes or no. Problems take time to get solved. I am patient about solving them. You have to be very correct, truthful about yourself. Okay,
Problems take time to get solved. I am patient about solving them. You have to mark yes, no. I take responsibility for my actions and mistakes. I work hard on every task. I keep trying new ideas. I think of different ways to solve a problem. I am creative. I think before I make a decision. I do not give up when I face a problem. So these are the qualities of an entrepreneur. And you have to think about yourself, and do you possess these qualities? You have to mark yes or no. So what are the instructions for you? The figure has all the qualities of successful entrepreneurs. You have to think about yourself and mark yes or no against each quality. Okay, give yourself a point for every yes answer. आपको अपने बारे में पूरा सही लिखना है, ये नहीं कि नहीं भी है फिर भी यस लिख दें, ऐसा नहीं, ठीक है. Then what you have to check? You have to look at how many yes you have. You are good at these things. Can you be better at these and how? ये चीज़ आपको ढूंढनी है, उनका आंसर्स ढूंढना है. Okay. Next you have to do it. Look at the no statements and what can you do to learn these qualities. अगर ये आप में ये qualities नहीं है तो कैसे आप ये qualities अपने अंदर ला सकते हैं, उसके लिए आपको मंथन विचार अपने अंदर करना है. ठीक है. Now this activity number 2. Here we have to solve a problem. क्या करना है? Here you will try to solve a problem in your vicinity, मतलब you are nearby. What are the instructions? Similar to the previous activity, select a problem in your area, near your home. This can be a problem that really bothers you. आइडियाज़ वहीं से निकल के आते हैं, जहां आपको थोड़ा सी दिक्कत होती है तब आप उसके लिए उसका समाधान अपने मन में आपके अचानक आता है, फिर आप उसके लिए प्रयासरत होते हैं. तो आपको भी यही करना है, अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखनी है और उसके लिए सॉल्यूशन सोचना है. तो जो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, देन यू हैव टू मेक अ 5 स्टेप प्लान फॉर हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट स्टेप ऑफ योर सॉल्यूशन. आफ्टर दैट ट्राई इम्प्लीमेंटिंग ऑल द स्टेप्स. Try your solution for a week. At the end of the week, rate yourself again on the entrepreneurial qualities you rated yourself. तो आपने उस प्रॉब्लम का जो आपने देखी थी उसका 5 स्टेप का एक समाधान भी बनाना है और एक एक स्टेप करके उनको इम्प्लीमेंट करना है और 1 हफ्ते तक उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है. क्योंकि आपके आसपास की प्रॉब्लम है, आपको उससे परेशानी होती है, आप उसके लिए प्लान बनाएंगे तो सही बनाएंगे और उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में क्या वो परेशानी दूर हुई. करके देखिएगा और उसके बाद 1 हफ्ते बाद अपने को रेट कीजिए. जिसमें आपने यस लिखा था वो वास्तव में यस है कि नहीं आप में, और जिसमें आपने नो लिखा था वो कहीं यस तो नहीं है आप में. तो ये चीज़ आपको देखनी होगी. देन यू हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस. व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? Are your ratings on your entrepreneurial qualities before doing the activity and after doing the activity different? जो आपने पहले यस लिखे थे और अब जो आप क्वालिटीज़ अपने में देख रहे हैं, क्या वो दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? What qualities did you see yourself apply in this activity? तो जो आपने एक्टिविटी की एक हफ्ते तक उसमें आपने कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ अप्लाई करके देखी? You would have applied some or all of these entrepreneurial qualities while implementing your solution. You did not implement a business solution but you exercise these qualities anyway. आपने कोई business solution नहीं किया, आपने इन्हीं qualities को apply किया है. These are ideal qualities that an entrepreneur has. However, any individual who is trying to solve a problem can hard to try new ideas to make their company products better or find creative ways to get work done. तो आपको क्रिएटिव होना होता है एंटरप्रेन्योर को. ओके, एक नए आइडियाज़ लेके आने होते हैं. दे आर ऑल्सो शोइंग द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. दे आर ऑल्सो बीइंग एंटरप्रेन्योरियल. इफ़ योर मदर और फादर वर्क इन ए कंपनी, आस्क देम इफ़ दे शो दीज क्वालिटीज़. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर डिस्कशन. और ये एक्टिविटी करके देखिएगा. एक कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए और उसके लिए खुद सॉल्यूशन बनाइए और उसको 1 हफ्ते तक इम्प्लीमेंट करके देखिए. तो क्या आप पाते हैं कि उस प्रॉब्लम में कुछ सुधार आया है, और जब आया है तो उसके बाद आपने कौन कौन सी क्वालिटीज़ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट की, उनको आइडेंटिफाई कीजिए. तो वो एक्चुअल में आपके अंदर यस वाली क्वालिटीज़ हैं और उसको मैच कीजिए आपने जो क्वालिटीज़ ऊपर यस मार्क की थी. ओके.
So functions of an entrepreneur, if you were to become an entrepreneur, you know how you would think and act. अब आपने इस एक्टिविटी को करके देखा तो आपको लगा कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर सोचता है, कैसे काम करता है. ओके, बट what would you actually be doing in your business? What work will you do every day? Okay? रोज आप क्या करेंगे अपने बिजनेस के लिए, वो हम अब देखेंगे. This is activity number 3. In this activity, students will observe entrepreneurs at work and speak to them and their employees about their work. तो अगर आपको मौका मिले तो आसपास पहले ढूंढिए कौन है एंटरप्रेन्योर और कौन बिजनेसमैन, और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. तो एंटरप्रेन्योर को ढूंढिए, उनका इंटरव्यू लीजिए अगर पॉसिबल है तो, और उनके एम्प्लॉयज़ से भी इंटरव्यू कीजिए और उनके वर्क को जानने की कोशिश कीजिए. क्या करना है? आइडेंटिफाई एन एंटरप्रेन्योर इन योर एरिया दैट यू लाइक और नो. On a weekend, spend some time in their shop and note everything that they do. After that, speak to that entrepreneur and ask them in detail what activities they do in a day. Also, speak to somebody who works for them. Ask them what activities they see the entrepreneur do in a day. Daily वो करते क्या हैं, आपको ये पता लगाना है वो क्या ऐसा है जो अलग करते हैं उस दिन में. So, you have to write all your notes. After you are back in class, make a list of all the actions you listed with your teacher. Compare your list with the list of your friends. Notice how many actions get repeated. तो आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से ये पता चलेगा कि आखिर एंटरप्रेन्योर लोग करते क्या हैं दिन भर. क्या वो एक कुर्सी में बैठे रहते हैं, वहीं सो जाते हैं और बाकी लोग काम करते हैं? क्या वो उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, या वो क्या क्या करते हैं? तो हर बच्चा जब एक एक एंटरप्रेन्योर को ढूंढेगा, उससे इंटरव्यू करेगा, उसकी वर्किंग देखेगा, उसको नोट डाउन करेगा, फिर हम आपस में आप मिला के चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से ऐसे काम हैं जो हर एंटरप्रेन्योर करता है. तो आपको उनकी कॉमन क्वालिटीज़ का पता चल पाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इंटरव्यू एंटरप्रेन्योर. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, व्हाट बिजनेस दे डू. उसके बाद आधा घंटा उनके शॉप पे बिता के आपने क्या क्या देखा वो लिखना है. उसके बाद उस एंटरप्रेन्योर से बात करनी है और उससे पूछना है कि एक दिन में वो क्या क्या करते हैं. फिर कुछ लोगों से जो वहाँ काम करते हैं उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि आप उस एंटरप्रेन्योर को दिन भर क्या करते हुए देखते हैं. और आपने कुछ और अगर नोटिस किया हो उस शॉप में या उसके बिजनेस को देखते हुए तो वो भी आपने नोट डाउन करना है. ओके, सो इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई एन एंटरप्रेन्योर, then you should go to interview that entrepreneur, spend some time in the shop and then write down these points. तो आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं उन्होंने अलग अलग लोगों से बातचीत की होगी, अलग अलग एंटरप्रेन्योर से बातचीत की होगी. जब आप कंपेयर करेंगे उस रिस्पॉन्सेज को तो आप देखेंगे दैट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स सम हैव सम कॉमन एक्टिविटीज़, कॉमन चीज़ें उनमें होती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड फंक्शंस. तो वो जो दिन भर की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनमें कॉमन होती हैं उनको हम कहते हैं फंक्शंस. फंक्शंस मीन वर्किंग इन अ वे. एक तरीका होता है उस काम को करने का, हर काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है. वैसे ही एंटरप्रेन्योर बनने का भी एक पाथ होता है, एक तरीका होता है. ओके, तो उसको हम कहते हैं फंक्शंस. तो एक एंटरप्रेन्योर जो दिन भर में काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, उनको हम फंक्शंस कहते हैं. सो इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर लिखे हुए हैं. आइए देखते हैं. मेकिंग डिसीजंस. एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजंस एवरी डे. क्योंकि उसका अपना एक आइडिया है ना, उसका अपना आइडिया है तो वो हर कोई भी चीज़ उसके सामने आएगी तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे रोज. ओके, सो दिस इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल, हाउ मच एंड वेयर. ये सब चीज़ें उसको, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन उसी ने देना है. देन सेकेंड फंक्शन इज मैनेजिंग द बिजनेस. पूरा मैनेज करना है ना. एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस. उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको कैसे ग्रो करना है, कहाँ कहाँ उस बिजनेस की शाखाएं खोलनी है, वो सब उसकी दिमाग में चलेगा. ही और शी अरेंजेस फॉर रॉ मटेरियल, हायर्स पीपल फॉर वर्क एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू. दे ऑल्सो चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड. तो उन्होंने ही सब कुछ करना है. पहले रॉ मटेरियल खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है, लोगों को भी वही हायर करेंगे, ऐसे किसी को भी हायर नहीं करेंगे. जो उसमें जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए वैसे लोग वो ढूंढेंगे. उसके बाद उनको बताएंगे कि काम कैसे करना है और ये भी देखेंगे कि क्या वो काम हो रहा है कि नहीं. ठीक है. डिवाइड इनकम, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसे भी तो देने हैं सबको जो काम कर रहे हैं. द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स.
कैसे? जो कच्चा माल खरीदा वहाँ भी पे करना पड़ेगा, जिस बिल्डिंग में वो अपनी शॉप चला रहे हैं उसका रेंट भी देना पड़ेगा, और लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज टेकिंग रिस्क। रिस्क इज़ द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। ठीक है, एक चांस है कि जो आप कुछ नया सोच रहे हैं वो गलत बैकफायर भी कर सकता है, गलत भी हो सकता है। सो एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम एंड थेफ्ट। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। नेक्स्ट फंक्शन, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि जो पुराना है वो तो चल ही रहे हैं, लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप में क्या ऐसा नया है कि लोग आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को लें। सो एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। ही और शी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम। तो उससे क्या होगा, लोग कुछ नया करेंगे तो लोग उनको जानेंगे, उसको खरीदेंगे, उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे, और उसी से उनकी इनकम भी बढ़ेगी। So these are the functions of an entrepreneur. So at the end we have some assignments, some questions for you to check the progress what you have learned in this session. Here are some stories of entrepreneurs. Tick the option for the quality they are showing. तो आपको जो लाइन्स दी हैं उसमें एक जगह ब्लैंक छोड़ा गया है, तो आपको उस 2-3 लाइनों को पढ़ के पता लगाना है कि कौन सी क्वालिटी के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा गया है, किस क्वालिटी का जिक्र किया गया है। ओके, वेरी सिंपल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट बी पार्ट, वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फंक्शन दैट द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग। फिर से कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, आपको इस बार बताना है कि कौन सा फंक्शन वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। एंड नेक्स्ट इन द पार्ट सी वी हैव अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। What do you think is the most important function of entrepreneur? आपको कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट लगा फंक्शन, और आपको अपना आंसर लिखना है और उसके साथ एग्जाम्पल भी देने हैं उसको प्रूव करने के लिए। तो इन एग्जाम्पल्स के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स। कौन से हैं लोग जो एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम कह रहे हैं, जिन्होंने एक नया आइडिया सोचा, तो उसके उन लोगों के आइडिया से भी कई बार आपको आइडिया एक स्ट्रक कर सकता है, उनकी जो वर्किंग थी उससे भी आपको नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपने आसपास की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपका वो सॉल्यूशन इतना यूनिक होगा, इतना इफेक्टिव होगा कि दैट यू विल बी गेट नोटिस्ड, कि लोग आपको नोटिस करेंगे, देखो इसके इतने छोटे से प्रयास से इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ द एंटरप्रेन्योर्स वर्क। एंड इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर माइंड around you to check for the problems in your areas and the unique solution for it, you can be a entrepreneur in future. Okay? तो यहीं से शुरुआत होती है, आप अपने आसपास से ही शुरू करते हैं, आप कोई दूसरे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स व्हाट दे डू इज दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन देयर सराउंडिंग्स एंड दे देन डिसाइड अ न्यू, अ यूनिक, अ क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, now what we have learned, we can identify the qualities of successful entrepreneurs and we can list the functions of entrepreneurs after going through all this video lesson. Okay, so this is the end of this video lesson. It was very informative for you, it was very creative, and there are a lot of activities that you have to do, and I think all of you are entrepreneurs and you will identify some problems in your area and you will work on that problem for a week, and you must do it, and I am 100% sure that you will be able to solve that problem up to some extent, so that you get an idea of how the entrepreneurs work, and you can and you will become an entrepreneur in the future. Okay, so we will discuss the next topic in the next video lesson. Till then, stay creative and search for the problems and their unique solution. Okay.